संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। आज हम बात करेंगे सैटर्न और मून कंजंक्शन की। जैसे आप जानते हैं हमारा ये सेशन जो चल रहा है ये 2 प्लैनेट्स कंजंक्शन के ऊपर चल रहा है, जहाँ पर हम 2 प्लैनेट्स कंजंक्शन के इफेक्ट्स देख रहे हैं कि 2 प्लैनेट अगर एक साथ रहेंगे या तो फिर एक ही डायरेक्शनल साइन में रहेंगे नाड़ी के हिसाब से, तो वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं और उनसे हम क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मूल मोटो है वो है कि मिनिमम 200 प्रेडिक्शन हम करना चाहते हैं एक बार चार्ट को देख के 2 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले हमने 2 प्लैनेट्स कंजंक्शन से स्टार्ट किए। इसके बाद ये टोटल ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमको और भी बहुत कुछ साधन चाहिए, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर टुडे डिस्कसिंग अबाउट मून एंड सैटर्न कंजंक्शन according to Nadi and according to Lal Kitab. As usual, first we start with Nadi. You know that in Nadi astrology, conjunction is not always must. 2 planets must not have to be in a same house. They might be in same directional sign. They might be in 212 position from one another. That's also a conjunction. And their effects actually their effects differ. In Nadi astrology, which planet touching to whom? Suppose moon is touching to Saturn, the results will be in a different series of we can make a different series of prediction. If Saturn is touching moon, then we have to make a different series of prediction. But here the chances or scopes are limited. As we are just discussing about the 2 planets, we have to come conclusion that we can make minimum 200 prediction. This is our first target. For that reason, we are just taking the common predictions which we can make if Saturn and Moon stays together. So let's start with Nadi astrology. In Nadi astrology, we have to come conclusion from Saturn and Moon conjunction. What are the results, what are the effects come. First, we can say that mother suffered a lot and had health problems, because moon, we see mother from moon, and Saturn is the enemy of moon, we know. So mother had suffered a lot because Saturn causes sufferings of past karma. That also is known to us from previous sessions. So mother had suffered a lot in her life and had health problem. If किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में अगर शनि और मून चंद्र का एक साथ या एक ही डायरेक्शनल साइन में या 212 में होना, यह दर्शाता है कि जातक या जातिका की जो माता है वो जीवन में बहुत बहुत कष्ट उनको उठाना पड़ा और उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ है। सेकंड जो प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि मून से हम ट्रैवल देखते हैं और सैटर्न से प्रोफेशन देखते हैं। तो मून सैटर्न अगर कंजंक्ट में है तो जातक या जातिका को प्रोफेशन के कारण ट्रैवल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ट्रैवल इन प्रोफेशन we can say in moon Saturn conjunction, travel from very short travel. Suppose a hawker or a canvasser is also traveling, and a person with a large portfolio is a chief executive officer of a multinational company. He travels all over the world, so he also have Moon Saturn conjunction. And the person hawking from door to door and asking for his or her products, they have also Moon and Saturn conjunction. So travel is sure in Moon Saturn conjunction.
नंबर 3 का जो पॉइंट है वो ब्लेम्स आएंगे प्रोफेशन में। देखिए सैटर्न से हम प्रोफेशन देखते हैं और जानते हैं आपके मून, नारी एस्ट्रोलॉजी में मून से हम ब्लेम्स देखते हैं, तो प्रोफेशन में ब्लेम्स रहेंगे। द पर्सन विल डेफिनेटली हैव सम ब्लेम इन हिज और हर प्रोफेशन। नंबर 4, मून से हम धन को भी देखते हैं और मून से दुश्मन है शनि, तो धन जो है वो खर्च हो जाएगा। स्पेंड्स ऑल हिज अर्निंग्स, द पर्सन कांट सेव एनीथिंग, वॉट एवर ही हैव अर्न is gone. That's a problem in Moon Saturn conjunction. प्रोफेशन में हम हार्डल्स भी देखते हैं। मून प्रोफेशन में प्रोफेशन है सैटर्न और मून जो है वो सैटर्न का एनिमी है, तो सैटर्न को वो बाधा पहुंचाएगी। तो प्रोफेशन में हार्डल्स जो है वो भी हम इस कंजंक्शन से बोल सकते हैं, क्योंकि सैटर्न इज प्रोफेशन एंड मून इज एनिमी. So profession, enemy of profession, that is hurdles in profession, so person will suffer from hurdles in profession. Due to past karma, the native suffers from chronic diseases. Actually, Moon Saturn conjunct people, especially who have very deep conjunct, same house or in very closer degrees, they definitely suffer from chronic diseases. And if it is in same directional sign or in exchange or in any kind of aspect with one another, 1-7 position, then also person may suffer from chronic diseases. One thing is sure, that in Moon Saturn conjunction, the native will not have too much of family peace and happiness. He or she may suffer in any part with any person of his family throughout the life. Suppose there is good relation between husband and wife, might be some problem regarding father-in-law, mother-in-law, problem regarding their childs, regarding their other relatives. So कहीं ना कहीं इनकी फैमिली लाइफ में भी सुख का कमी ये महसूस करेंगे, जिनको मून सैटर्न का कंजंक्शन है वो। मून क्या दिखाता है? मून दिखाता है चेंज, हम जानते हैं, और सैटर्न दिखाता है प्रोफेशन। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस आएंगे प्रोफेशन में। ऐसे हम जानते ही हैं कि जब मून के ऊपर जब सैटर्न ट्रांजिट करता है, 7.5 का पीरियड जब आता है, तो पर्सन्स का बहुत कुछ बदल जाता है। और मून सैटर्न जिसको कंजंक्ट जिनके चार्ट में रहेंगे, उनका तो प्रोफेशन में चेंजेस आना ये तो मामूली सा बात है, ये तो होगा ही। तो मून सैटर्न कंजंक्शन में हम बोल सकते हैं कि पर्सन को प्रोफेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था अकॉर्डिंग टू नारी एस्ट्रोलॉजी मून सैटर्न कंजंक्शंस के इफेक्ट्स। अब चलिए हम बात करते हैं लाल किताब की ओर, कि लाल किताब में मून सैटर्न कंजंक्शन में क्या लिखा है। एक चीज़ मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दूं कि लाल किताब में हम डायरेक्शनल साइन को नहीं देखते हैं। लाल किताब में हम एक ही हाउस में, एक ही खाना बोलते हैं लाल किताब, तो एक ही खाना में 2 प्लैनेट हो, उसी को हम कंजंक्शन मानते हैं। तो क्या रिजल्ट्स आएंगे एक बार चलिए देख लेते हैं। मून सैटर्न कंजंक्शन अकॉर्डिंग टू लाल किताब। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सैटर्न कौन सी हाउस में कैसा है और मून कौन सा हाउस में कैसा है, क्योंकि हम जानते हैं लाल किताब में कि इंडिविजुअल इफेक्ट्स प्लैनेट्स का आता है। जैसे नाड़ी में क्या होता है कि 2 प्लैनेट मिक्स हो जाता है और होके एक रिजल्ट आता है, लेकिन लाल किताब में हर एक प्लैनेट अपना इंडिविजुअल इफेक्ट ज़रूर देता है। सो सैटर्न यूजुअली बैड, we say usually because you know that good and bad depends upon many things in Lal Kitab, but usually bad in first house, 4th house, 5th house and 6th house. Saturn is the significator of 8th and 10th house. Saturn's usually good in 2nd house, 3rd house, 7th house, 8th house, 9th house, 10th house, 11th and 12th house. On the other hand, moon is good 1, 2, 3, 4, 5,
5 houses first, then 7th house and 9th house. Moon is the significator of 4th house, we all know. Moon is bad in 6th house, in 8th house, in 10th house, in 11th house and in 12th house. So if these conjunctions happens in any of these houses, whether moon is good on that house or Saturn is good on that house, whether moon is bad on that house, Saturn is bad on that house, तो इन दोनों का जो गुड और बैड, अच्छा और बुरा होने का जो 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 खाना के हिसाब से हम बताया, तो वो रिजल्ट तो आएंगे ही. सपोज मून एंड सैटर्न सेकेंड हाउस में है, सेकेंड हाउस में मून भी अच्छा है, सैटर्न भी अच्छा है, तो इतना ख़राब ये इफ़ेक्ट नहीं देगा. लेकिन अगर ऐसे हाउस में है जहाँ पर दोनों ही खराब है, मान लो कि छठे भाव में मून भी खराब है, छठे भाव में शनि भी खराब है, यहाँ पर अगर ये कंजंक्शन बनेंगे तो खराब रिजल्ट आएंगे, ये तो कंफर्म्ड है. मून सैटर्न कंजंक्शन में लाल किताब में जो लिखा है वो ये है कि ये बूमेरांग हो जाता है, शावर एंड पॉइजनस मिल्क जैसा है, ब्लडी वेल जैसा है. क्यों, हम धीरे धीरे इसको समझेंगे. ये सब एक्चुअली लाल किताब में इसी भावना से लिखा जाता है कि ये एक शायरी के हिसाब से लिखा जाता है, आप जानते हैं. तो ये सब बातें क्यों हैं, बूमेरांग क्यों बोलते हैं इसको, शावर और पॉइजनस मिल्क ये कब बनेगा, ब्लडी वेल कब बनेगा, हम इसको आगे देखते हैं. शनि और चंद्र का कंजंक्शन जो है वो ब्लाइंड हॉर्स है. एक्चुअली ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इंसान को क्या काम करे, कहाँ जाए, किस प्रोफेशन में जाए, किनसे उसको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ये खुद ही को नहीं पता, लेकिन वो दौड़ता जाता है और दौड़ता जाता है. ये है ब्लाइंड हॉर्स. और जैसे यहाँ पर वर्णन ऐसे किया गया है कि जैसे किसी के पास घर हो, बहुत अच्छा घर हो, लेकिन वो घर पानी से भरा हो, तो वो घर का किसी काम का वो घर नहीं है. तो मून सैटर्न कंजंक्शन ऐसा है कि आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होता. ये है मून सैटर्न कंजंक्शन. लेकिन एक चीज़ लाल किताब में क्लियरली लिखा है कि अगर मून सैटर्न कंजंक्शन वाला कोई लास्टफुल कंडक्ट करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा. उसको कैरेक्टर सबसे पहले सही रखना पड़ेगा, क्योंकि है ही वो इस दुनिया में, वो आया ही है ये कंजंक्शन को लेके. जो कंजंक्शन उसको ब्लाइंड हॉर्स बना देता है, जो कंजंक्शन उसको ऐसे बना देता है कि घर फ्लडेड विथ वाटर. अब अगर वो ख़राब काम करेगा, अपने कर्मों को ख़राब में लेके जाएगा, लास्टफुल कंडक्ट करेगा, तो उसका रुइंस हो जाना ये तो अनिवार्य है, ये तो होगा ही. क्या होता है मून सैटर्न में कि नेटिव वेल्थ जो है वो एंजॉयड बाय द स्पाउस, इन लॉज एंड फ्रेंड्स. उसके पास अपार धन हो सकता है, लेकिन वो धन वो खुद खर्च नहीं कर सकता. ऐसा सिचुएशंस, ऐसे पोजीशंस आते हैं कि धन है, लेकिन जब धन की ज़रूरत हो तब वो धन उसके पास नहीं है, वो धन दूसरे किसी के पास है. उसका जिम्मेवारी तब उसके दूसरे किसी का है, वो धन ले भी नहीं सकता, किसी को दे भी नहीं सकता. ये है मून सैटर्न कंजंक्शन. एकदम आप जीवन में देखेंगे व्यक्ति का एकदम हुबहू ये सिचुएशन, एकदम हुबहू सेम टू सेम होता है कि धन है, लेकिन जब धन का सबसे बड़ा ज़रूरत हो तब वो धन उसके हाथ में नहीं होता है. मून सैटर्न कंजंक्शन अगर खाना नंबर 1 में हो, फर्स्ट हाउस में हो, तो राहु केतु दोनों खराब होते हैं. केतु से हम संतान को देखते हैं लाल किताब में, तो सन विल स्क्वेंडर ऑल द वेल्थ. A person having good wealth, but his son, the only beloved son, I may say, will squander all the wealth. नंबर 2, अगर खाना नंबर 2 में ये मून सैटर्न कंजंक्शन बनता है तो आदमी का मृत्यु
वो एक्सीडेंट में होता है या तो बाई वेपन होता है। ये भी एकदम सही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी को जानना कि बहुत इच्छा हो तो आप संपर्क कीजिएगा, हम बता देंगे कि आदमी का सेकेंड हाउस में मून सैटर्न था, उसका डेथ बाई वेपन हुआ है। नंबर 3, खाना नंबर 3 में अगर ये कंजंक्शन बनता है तो उसके घर में चोरी होता है, उसका धन चोरी हो जाता है, और उसके जो सन है, उसके जो संतान है, वो भी सारे ज़िंदगी सफ़र करते हैं। अगर 4 में हो तो ब्लडी वेल इसको कहा जाता है, क्योंकि वो खुद को तो सही रखता है लेकिन जो भी उसके कांटेक्ट में आते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। और खाना नंबर 4, एज इट इज़ ओन्ड बाय द मून, कैंसर इज़ अ राशि ऑफ कालपुरुषा इन खाना नंबर 4, so person may die by drawing at night. What a prediction can we make? Actually, Lal Kitab is Lal Kitab, and each and every prediction is 100% correct. If you find a person having Moon Saturn conjunction is Cancer, is in house number 4, you may definitely say that he has a great chance of dying by drawing if sun is not in favorable position and Jupiter is not in favorable position in his horoscope. अगर 5 नंबर खाना में ये हो तो खाना नंबर 1 में जैसे हमने देखा कि संतान के कारण पूरा धन खर्च हो जाता है, वही सिचुएशन खाना नंबर 5 में भी आ जाता है। खाना नंबर 6 में अगर हो, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि दोनों ही खराब रिजल्ट देंगे, और सैटर्न्स की जो बिज़नेस है जो वो भी खराब होंगे, एकदम अच्छा रिजल्ट नहीं जाता, ओस्ट फेट हम बोल सकते हैं। खाना नंबर 6 में अगर शनि और चंद्रमा का युति है तो साथ में होंगे तो आई डिजीज़ देंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे, पर्सन ब्लाइंड हो जाएगा कंप्लीट अगर खाना नंबर 7 में होगा तो। 8 में होगा तो मिसहैप्स फ्रॉम सैटर्न्स आर्टिकल, दैट इज वेपन्स, एनिमल्स एंड स्नेक, मिसहैप हो जाता है। मिसहैप मतलब बहुत कुछ खराब घटनाएं इनको जीवन में घटित हो सकता है। ये वेपन से लेके वेपन से संबंधित, एनिमल्स के संबंधित और स्नेक्स के संबंधित। 9 में होंगे तो पॉइजन बाय मिल्क, डिस्टर्ब्ड एंड डिप्रेस्ड लाइफ, दूध जो होता है वो भी, अमृत जो है वो भी पॉइजनस हो जाएंगे अगर खाना नंबर 9 में मून सैटर्न एक साथ बैठा हो और जुपिटर अगर खराब हो तो। खाना नंबर 10 में भी वो सब lose all his wealth at the time of necessity, he will have any wealth। और अगर खाना नंबर 12 में हो तो मैरिड लाइफ जो है वो अनहैप्पी हो जाएंगे, he will suffer from unhappy married life if moon saturn in खाना नंबर 12। तो दोस्तों ये था मून सैटर्न कंजंक्शन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। आप ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बहुत जल्द दूसरा किसी कॉम्बिनेशन को लेके आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते, जय राम कृष्ण।